اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ حملوں کے باعث رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ کشیدگی کی وجہ سے جرمنی نے اپنے 5000 شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ تازہ کارروائیوں میں غزہ پر ہزاروں ٹن بارود گرا دیا گیا ہے۔ عمارتیں، ہسپتال، سکول کچھ بھی نہ چھوڑا۔ بندرگاہ پر ماہی گیروں کی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ قابض افواج کی ایک ہفتے سے جاری بربریت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1500 ہو گئی، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کی لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنانی حکومت نے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے دورہ بیروت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے یقین دلایا ہے کہ ان کا دورہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچنے پر لبنانی حکام کے ساتھ ساتھ حماس اور اسلامی جہاد کے نمائندوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 اکتوبر تک کے لیے توسیع کر دی۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں ATC جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی رخصت کے باعث سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پرویز الہی کی جانب سے وکیل عبدالرزاق عدالت میں پیش ہوئے۔ قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف 21 اکتوبر کو دن 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ امید پاکستان طیارہ نواز شریف کو لے کر UAE سے روانہ ہوگا۔ خصوصی پرواز میں 152 افراد سوار ہوں گے۔ نواز شریف کے ہمراہ پارٹی کارکنان، صحافی بھی پاکستان پہنچیں گے۔ قائد مسلم لیگ نون اس وقت جدہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ پاکستان معاشی بحالی کے سفر پر گامزن ہونے لگا، جس کی شرح نمو میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ ملکوں کی ترقی کا دار و مدار ان کی مضبوط معیشت پر ہوتا ہے۔ عسکری قیادت اور دیگر حکومتی حکمرانوں کی انتھک کوششوں اور محنت کے ثمرات رونما ہو رہے ہیں۔ مالی سال 2024 کے لیے شرح نمو 3.5% تک بہتر ہو گئی۔ سال 2023 کے لیے یہ شرح 0.3 تھی۔ اگست 2023 تک پاور جنریشن میں 14%، ڈیزل سیل میں 11%، پیٹرول سیل میں 8% سے زائد اضافہ دیکھا گیا۔ سیمنٹ سیل میں 45%، یوریا سیل میں 49% اور آٹو سیل میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ DC آفس کی جانب سے PTI کی درخواست پر جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا گیا۔ عدالت میں جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ PTI کو درخواست کے بعد 10 اکتوبر کو تمام اداروں کا اجلاس ہوا۔ 9 مئی کو PTI ورکرز اور لیڈرز نے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ بھی کیا تھا۔ پنجاب بھر میں اساتذہ لیو انکیشمنٹ اور سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جبکہ پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد اساتذہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے لاہور میں احتجاج کرنے والے 100 سے زائد اساتذہ اور سرکاری ملازمین کو گرفتار کر لیا، جبکہ فیصل آباد میں مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد پولیس نے ہوائی فائرنگ اور شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کیا۔ گجرانوالہ، گجرات، بہاولپور، بہاول نگر، میاں چنو میں بھی اساتذہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جبکہ حافظ آباد میں اساتذہ کے ہمراہ طالب علم بھی سڑکوں پر نکل آئے۔
बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन के दौरान मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियों के बाद वाजिबात की वसूली का सिलसिला जारी है। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 27,381 मुकदमात दर्ज करके 13,621 अफराद को गिरफ्तार जबकि 17.67 अरब रुपए वसूल किए गए हैं। बिजली चोरी के मुकदमात, गिरफ्तारियों और वाजिबात की अदायगी में लेस्को लाहौर सरे फहरिस्त है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला अब भी जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 3 पैसा सस्ता होने के बाद 277 रुपए 55 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 58 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज मस्बत रुझान है। कोट अद्दू में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा कोट अद्दू के इलाके नूरशाह तलाय रोड के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार अंधेरा होने की वजह से सड़क के किनारे खड़े खराब ट्राले से जा टकराई। और शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मौसीकी के बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान ने फैसलाबाद के कवाल घराने में 13 अक्टूबर 1998 को आंख खोली। वालिद फतेह अली खान और ताया मुबारक अली खान अपने वक्त के मशहूर कवाल थे। 16 साल की उम्र में कवाली का फन सीखा। कवाली के साथ गजलें, क्लासिकल और सूफी गीत भी गाए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने अपनी तमाम उम्र कवाली के फन को सीखने और इसे मशरिक और मगरिब में मकबूल आम बनाने में सर्फ कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि इसराइल की जानिब से गजा पर वहशियाना बमबारी जारी है। हमलों के बायस रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कुशीदगी की वजह से जर्मनी ने अपने 5,000 शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म भी दे दिया है। ताजा कार्रवाइयों में गजा पर हजारों टन बारूद गिरा दिया गया। इमारतें, अस्पताल, स्कूल कुछ भी नहीं छोड़ा। बंदरगाह पर माहीगीरों की कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। काबिज अफवाज की एक हफ्ते से जारी बर्बरियत के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1500 हो गई है, जिनमें बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है, जबकि 6,000 से जायद जख्मी और 3 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। इसराइल ने गजा पर फिजाई बमबारी के बाद जमीनी हमलों की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। इसराइली अफवाज की जानिब से गजा पर टैंकों के जरिए चढ़ाई करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। इस हवाले से शमाली सरहदी इलाकों पर जदीद टैंक और फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, जबकि लाखों फौजियों को भी गजा की सरहद पर जमा कर लिया गया है। हमास से लड़ाई के बावजूद मगरबी किनारे पर भी इसराइली फौजियों ने 2 फलस्तीनियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया, जबकि मकबूजा बैतुल मुकद्दस और कोलंबिया के मुहाजिर कैंपों पर छापे मार कर निहत्थे फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है। कई पर तशद्दुद भी किया गया। दूसरी जानिब हमास की तरफ से भी इसराइल के हमलों पर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने फलस्तीनी सरहद के करीब इसराइली इलाकों में छापा मार कार्रवाइयां शुरू कर दी, जबकि जसूर के मकाम पर घुमसान की लड़ाई हुई। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद इस वक्त 1300 से तजावज कर गई, जबकि 3000 से जायद जख्मी हैं।
ایران کے وزیر خارجہ لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے ملاقات ہوئی۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنانی حکومت نے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے دورہ بیروت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ ان کا دورہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے لبنان کے دارالحکومت بیروت پہنچنے پر لبنانی حکام کے ساتھ ساتھ حماس اور اسلامی جہاد کے نمائندوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ کا حزب اللہ کی طرف ممکنہ اشارہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکنہ حقیقت ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 اکتوبر تک کے لیے توسیع کر دی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں ATC جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی رخصت کے باعث سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پرویز الہی کی جانب سے وکیل عبدالرزاق عدالت پیش ہوئے۔ ڈیوٹی جج نے استفسار کیا کہ کیا پرویز الہی کی حد تک چالان عدالت میں جمع ہو گیا ہے۔ عدالتی عملے نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے صرف جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کرنی ہے، جبکہ تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ پرویز الہی کی حد تک چالان آ گیا ہے۔ نوٹس بھی ہو چکا ہے۔ جج شاہ رخ ارجمن نے ریمارکس میں کہا کہ شریک ملزمان کے ساتھ ہی پرویز الہی کی بھی اگلی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ وکیل صفائی عبدالرزاق ایڈوکیٹ نے مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے 24 اکتوبر سے لمبی تاریخ رکھ دیں۔ پرویز الہی کی لاہور کی عدالت میں بھی پیشی ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ شریک ملزمان کے ساتھ ہی پرویز الہی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ بعد میں عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 اکتوبر تک کے لیے توسیع کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ قائد مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف 21 اکتوبر کو دن 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ امید ہے پاکستان طیارہ نواز شریف کو لے کر UAE سے روانہ ہوگا۔ خصوصی پرواز میں 152 افراد سوار ہوں گے۔ نواز شریف کے ہمراہ پارٹی کارکنان اور صحافی بھی پاکستان پہنچیں گے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اس وقت جدہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ نواز شریف جدہ میں شاہی خاندان کے اہم اراکین سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں جلسے کے لیے انتظامیہ کو درخواست دے دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی پر مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو باقاعدہ درخواست دے دی۔ درخواست میں 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر تک انتظامات اور جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ لیگی رہنما اور سابق وزیر بلال یاسین کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے درخواست موصول کر لی ہے۔ امید ہے جلد اجازت مل جائے گی۔ جلسے سے 2 روز قبل سینئر لیڈرشپ جلسہ گاہ کا دورہ بھی کریں گے۔ سابق وزیر نے مزید کہا کہ نواز شریف لاہور ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ پاکستان معاشی بحالی کے سفر پر گامزن ہونے لگا ہے، جس کی شرح نمو میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ ملکوں کی ترقی کا دار و مدار ان کی مضبوط معیشت پر ہوتا ہے۔ عسکری قیادت اور دیگر حکومتی حکمرانوں کی انتھک کوششوں اور محنت کے ثمرات رونما ہو رہے ہیں۔ مالی سال 2024 کے لیے شرح نمو 3.5% تک بہتر ہو گئی۔ سال 2023 کے لیے یہ شرح 0.3 تھی۔ اگست 2023 تک پاور جنریشن میں 14%، ڈیزل سیل میں 11%، پیٹرول سیل میں 8%۔ اس سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سیمنٹ سیل میں 45%، یوریا سیل میں 49% اور آٹو سیل میں 18% اضافہ ہوا، جبکہ ستمبر 2023 میں پاکستان کی برآمدات 1.15% سے $2.40 بلین تک پہنچ چکی ہیں۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی شرح نمو میں 42% کا ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ملک میں کاٹن کی پیداوار 72% اور گندم کی پیداوار 28 ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے، جبکہ چاول کی پیداوار 9 ملین ٹن پہنچنے کے امکانات ہیں۔ 2 ماہ میں ڈالر کی قیمت میں 50 روپے سے زیادہ کمی ہوئی۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی بہترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی بن گئی۔ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور غیر قانونی شہریوں کی
मुल्क बदरी से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। माह सितंबर में तजारती खसारे में 48.2% तक कमी आई। फसल की पैदावार में बेहतरी की वजह से पाकिस्तान $5 अरब तक फॉरेन एक्सचेंज भी बचा सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान IMF, बैनुल अक़वामी तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से मजमूई तौर पर $1.4 अरब लेगा। पाक फौज और निगरान हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल कर तरक्की की तरफ राग़िब करने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। DC ऑफिस की जानिब से PTI की दरख्वास्त पर जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया। अदालत में जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि PTI की दरख्वास्त के बाद 10 अक्टूबर को तमाम अदारों का इजलास हुआ। 9 मई को PTI वर्कर्स और लीडर्स ने एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और जलाओ घेराव किया। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने PTI को जलसे का NOC जारी करने से इनकार कर दिया है। पंजाब भर में उसातिज़ा लीव इनकैशमेंट और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जबकि पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए मुतादिद उसातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लाहौर में एहतजाज करने वाले 100 से ज्यादा उसातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है, जबकि फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग और शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। गुजरावाला, गुजरात, बहावलपुर, बहावलनगर, मियां चन्नू में भी उसातिज़ा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जबकि हाफिजाबाद में उसातिज़ा के हमरा तालिब इल्म भी सड़कों पर निकल आए। उसातिज़ा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस की जानिब से 125 से ज्यादा तलबा, 2 हेडमास्टरों और उसातिज़ा के खिलाफ मोटरवे बंद करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरेवाला में उसातिज़ा की जानिब से रैलियां निकाली गई, जबकि 3 रोज से सरकारी तलीमी इदारे बंद हैं। पतोकी में भी उसातिज़ा की जानिब से स्कूलों की तालाबंदी कर दी गई। सरकारी उसातिज़ा लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएंटी बिल में तरामीम वापस लेने और साथ ही उसातिज़ा की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इधर गुजरावाला में भी उसातिज़ा ने स्कूलों की तालाबंदी करके तालीमी बायकॉट कर दिया। खवातीन और मर्द उसातिज़ा DC ऑफिस के सामने जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन के दौरान मुकदमात का अंदराज और गिरफ्तारियों के बाद वाजिबात की वसूली का सिलसिला भी जारी है। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 27,381 मुकदमात दर्ज करके 13,621 अफराद को गिरफ्तार, जबकि 17.67 अरब रुपए वसूल किए गए। बिजली चोरी के मुकदमात, गिरफ्तारियों और वाजिबात की अदायगियों में लेस्को लाहौर सर फहरिस्त है। लेस्को लाहौर में बिजली चोरी के खिलाफ 12,778 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इसके साथ 4,588 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 4.61 अरब रुपए के वाजिबात वसूल किए गए। इसी तरह गेप्को में बिजली चोरों के खिलाफ 1473 मुकदमात दर्ज करके 769 गिरफ्तारियां की गई और 51 करोड़ रुपए के वाजिबात भी वसूल किए गए हैं। फेस्को में 2,358 मुकदमात दर्ज करके 1932 गिरफ्तारियां अमल में आई गई, जबकि 70 करोड़ रुपए के वाजिबात वसूल किए गए। आयस्को में 349 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 263 गिरफ्तारियां करके 38 करोड़ रुपए के वाजिबात वसूल किए गए। नेपको में 5,856 मुकदमात दर्ज हुए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला अब भी जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 3 पैसे सस्ता होने के बाद 277 रुपए 55 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 58 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आज भी मस्बत रुझान है, जहां 100 इंडेक्स 49,000 की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 292 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 49,064 पर आ गया है। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 48,761 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी शिरकत की।
3 अक्टूबर को वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर हुए हैं। पाक बहरिया तर्जुमान के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1979 में पाक बहरिया की ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिग तहसील हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लैट और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। नवीद अशरफ डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रेनिंग एंड प्रिंसिपल, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिन और डिप्टी प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। कोट अद्दू में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्राले से टकरा गई, जिसके बायस 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। अफसोसनाक हादसा कोट अद्दू के इलाके नूरशाह तलाए रोड के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार अंधेरा होने की वजह से सड़क के किनारे खड़े खराब ट्राले से जा टकराई। तसादुम इस कदर शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। मरने वालों की शिनाख्त इकबाल, गुलाम कासिम, सईद बिलाल और गुलाम फरीद के नाम से हुई है। तमाम अफराद का ताल्लुक कोट सुल्तान जिला लिया से है। शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मौसीकी के बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान ने फैसलाबाद के कवाल घराने में 13 अक्टूबर 1958 को आंख खोली। वालिद फतेह अली खान और ताया मुबारक अली खान अपने वक्त के मशहूर कवाल थे। 16 साल की उम्र में कवाली का फन सीखा। कवाली के साथ गजलें, क्लासिकल और सूफी गीत भी गाए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने अपनी तमाम उम्र कवाली के फन को सीखने और इसे मशरक और मगरिब में मकबूल आम बनाने में सर्फ कर दी। उन्होंने सूफिया का नाम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल नामवर मौसीकार नुसरत फतेह अली खान ने अपने तवील करियर के दौरान आरिफाना कलाम, गीतों, गजलों और कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाए रखा। सुरों के शहनशाह ने मगरबी साजों को इस्तेमाल करके कवाली को जिद्दत के साथ एक नई जहत बख्शी। उनकी कवाली दम मस्त कलंदर अली अली को आलमी मकबूलियत भी हासिल है। मेरी जिंदगी है तू, किसी दा यार ना विछड़े, तुम एक गोरख धंधा हो, ये जो हल्का हल्का सरूर है समेत कई कवालियां आज भी अजीम गुलकार को जिंदा रखे हुए हैं। नुसरत फतेह अली खान की कवाली के 125 से जायद ऑडियो एल्बम भी जारी हुए। उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। उन्हें सदारती अवार्ड, बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत बेशुमार मुल्की और आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। खबरें और भी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को वतन वापसी। कराची में भी मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग व लेबर विंग के जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जबरदस्त तैयारी जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन से। जी नूर अमीन, बताइएगा क्या तफसीलात है नवाज शरीफ साहब? जी बिल्कुल, जिस तरह के 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद होगी, उसके लिए पूरे मुल्क में तैयारियां बड़ी जोरों शोर से जारी है। इस तरह कराची में मिनाटी विंग के जानिब से भी बड़े जोरों शोर से तैयारी जारी है। इस वक्त याकूब कोकर मौजूद है, मिनाटी विंग सिंध के जो नायब सदर है सीनियर, इस वक्त उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा 21 अक्टूबर के हवाले से क्या तैयारियां है, कितने लोग जाएंगे कायद मियां नवाज शरीफ को लेने के लिए? मेरे महबूब कायद जो हैं मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं, और हम जो कारकुन हैं, हम उनके जो सिपाही हैं, हमारे अंदर इस तरह से खुशी है जैसे कोई एक ईद को सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह मिनॉरिटी विंग में जो है उनके लिए तैयारियां हैं। और हमने जो है, मैं रातों को बैठ कर लिस्ट बनाता हूं। अभी मिनॉरिटी विंग से सिर्फ कराची से 3 बोगियों से ज़्यादा लोग हैं, और हम सोच रहे हैं कि किस तरह से लोगों को अकोमोडेट करें। और इंशाल्लाह जो है कराची से जो ट्रेन चल रही है उसमें 4 से 5 बोगियां जो हैं, डब्बे जो हैं वो सिर्फ मिनॉरिटी विंग से भरे होंगे।
اور ہمارے کھیلداز صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں. ہم دن رات جو ہیں اسی تیاریوں میں مصروف ہیں. گھر گھر جا کر اپنے محبوب قائد کا جو پیغام ہے وہ پہنچاتے ہیں. اور ساتھ میں ہم جو کارکن ہیں وہ اس طرح سے سرگرم ہیں کہ ہر ایک ہمیں کال آتی ہے جی ہم تو جا رہے ہیں, ہمارے بچے بھی جائیں گے, ان کے بھی نام لکھیں. ہم کہتے ہیں جی ان کے آئی ڈی کارڈ فون نمبر دیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ڈال لیں, ان کے تو کارڈ نہیں ہے, وہ انڈر ایج ہیں. تو ہم اس طرح سے کر کے ان کے پیرنٹس کے جو نام ہیں لسٹیں اپنی تیار کر رہے ہیں, ہم بنا رہے ہیں. اور ٹرین میں ایک عید کا سا سما ہوگا, کھچا کھچ ٹرینیں بھری ہوں گی انشاءاللہ. اور ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو محبوب قائد کا استقبال اس طرح سے کبھی پاکستان میں کسی لیڈر کا نہیں ہوا ہوگا جس طرح سے ہم کر رہے ہیں. اخلاق بھائی بتائیے گا کہ نواز شریف کی آمد کا سلسلہ جو وہ تو جاری ہے, لیکن تیاریوں کا کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے, تو میں ان تمام دوستوں کو, تمام لوگوں کو سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ 21 تاریخ کو انشاءاللہ نواز شریف صاحب رات کو خطاب کریں گے مینار پاکستان پر. اور جو آپ نے جو خواب دیکھا ہے یا جو پروپیگنڈا آپ جو لوگ کر رہے ہیں کہ مینار پاکستان کی آپ دیدار کریں گے, انشاءاللہ وہاں پر اتنی پبلک ہوگی کہ میلوں تک پبلک پھیلی ہوئی ہوگی. اب میں بتا دیتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کراچی میں. آج پہلی دفعہ جو ہے نا کراچی سے جو ہے نا 3 ٹرینیں اسپیشل ٹرینیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں لاہور, جو مختلف اندرون سندھ مختلف اسٹیشنز پر رکتی ہوئی جائیں گی. اور تمام جو سندھ کے کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے سر پر سندھی ٹوپی ہوگی اور اجرک ہوگی ان کے پاس. اور تمام مہمانوں کو ہم لوگ جو ہے نا اجرک کا سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ دیں گے. اور یہ تمام پبلک ہمارے ساتھ جب جائے گی, اور یہ اتنی پبلک اکٹھی ہو چکی ہے کہ ہماری ابھی بکنگ سے اوپر لوگ جا چکے ہیں. نہیں, نون لیگ نے تو کراچی میں جو ان کی ایک کہ حد تک تھی, جیسے گرین لائن دی, اپنا امن دیا, سب سے بڑا جو ہے نا دہشت گردیاں ختم کی, لوڈ شیڈنگ ختم کی, تو یہ ساری چیزیں نون لیگ کے زمانے میں ہوئی ہے. بالکل. اس وقت یعقوب کوکر کے جانب سے کہا گیا کہ 21 اکتوبر کا جو دن ہے پاکستان کا تاریخی دن ہوگا. قائد میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور بھرپور استقبال کیا جائے گا. اور نگراں صوبائی وزیر برائے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جاوید اکرم نے سیالکوٹ میں علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال, سردار بیگم ٹیچنگ ہسپتال کے اچانک دورے کیے. صوبائی وزیر نے ہسپتال میں جاری کام کا معائنہ کیا, جہاں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر شاہمیر اقبال, پرنسپل ڈاکٹر عبدالستار, ایم ایس ڈاکٹر رانا الیاس, ایکسین بلڈنگز, ایس ڈی او چودھری اعجاز نے ان کو بریفنگ دی. نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ ہسپتال کی تزئین و آرائش پر 29 کروڑ روپے لاگت کے منصوبے کے پہلے فیز میں ہسپتال کے 60,000 مربع فٹ ایریا پر کام 15 نومبر تک مکمل کر لیا جائے گا. اس فیز میں سائیکالوجی, ای این ٹی, انفرولوجی, گائنی, سرجیکل وارڈ, متعدد آپریشن تھیٹرز کی تزئین و آرائش کی جائے گی. دوسرے مرحلے میں میڈیکل ایمرجنسی, ٹی بی, فیملی وارڈ میں کام ہوگا. اس کا ایریا 40,000 مربع فٹ ہے. صوبائی وزیر صحت نے ہدایت کی ہے کہ ہسپتال انتظامیہ ریونیو کمپوننٹ کا تخمینہ فوری مکمل کرے, خراب بیڈ اور آلات تبدیل کیے جائیں. انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 3 کنال رقبے پر پیڈز وارڈ تعمیر کی جائے گی. ہسپتال میں ایمرجنسی سہولیات کو بہتر بنانے, پیڈز کی تعداد میں اضافہ, انجیوگرافی کا منصوبہ بھی ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ کسی بھی ملک میں سیاحت کا شعبہ معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے. پاکستان میں اب سیاحت کو مزید فروغ دینے کے لیے لیجنڈ ہوٹل اور نزالہ پٹریاٹا کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے, جس میں سیاحوں کے لیے پٹریاٹا میں نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا. ہر طرح کی سہولیات بھی مہیا کی جائیں گی. مزید جانتے ہیں اس پر اسلام آباد سے سونیا ملک کی اس رپورٹ میں. آج کے دور جدید میں بھی سیاحت دنیا بھر میں مقبول ہے. دنیا کے سبھی ممالک کے لوگ اب گوگل پہ سرچ کر کے سیاحت کے لیے نکل پڑتے ہیں. بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سیاحت کے ایسے مقام موجود ہیں جس سے سیاح لطف اندوز ہوتے ہیں. پاکستان میں اب سیاحت کو مزید فروغ دینے کے لیے لیجنڈ ہوٹل اور نزالیہ پٹریاٹا کے درمیان
एक मुआयदा तय पाया गया जिसमें सियाहों के लिए पटियाला में नई नई जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और हर तरह की सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। हुकूमत की भी ये तरजीह है कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे कि वो आगे बढ़े और इन्वेस्ट करे। और आज ये जो लेजेंड होटल और नतालिया रिजॉर्ट में मुआहदा हुआ है, ये एक शुरुआत है इस चीज़ की कि प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है और हॉस्पिटलिटी सेक्टर की खिदमात को बेहतर करने के लिए इस पर इन्वेस्ट भी कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कम से कम 200 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के होटल्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। देखो बेटा, जब आप कोई होटल खोलते हैं ना, या टूरिज़्म में कोई टूर ऑपरेटिंग कंपनी खोलते हैं, या टूरिज़्म के लिए आप इन्हांसमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ आप एक इंडिविजुअल इदारे की बात नहीं करते, उसके साथ पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। अब हम ये होटल जो खोल रहे हैं पटियाला में निजालिया, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट आएगा, हम लोकल एम्प्लॉयमेंट देंगे, ट्रेन करेंगे लोगों को। हम यहाँ पे लेजेंड होटल में भी यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं, हमारे पास इंटर्नशिप चलती है। हम ट्राई करते हैं कि यूथ को बिज़ी रखें, उनको देखा। जब हमने स्टार्ट किया था ना जॉब, तो उस वक्त ये इंडस्ट्री नहीं था, हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो हम होटल में आ गए थे। लेकिन अब ये पूरी एक अपॉर्चुनिटी है, एक इंडस्ट्री है, इसमें प्रोफेशनल स्टडीज़ की ज़रूरत है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और इसकी पाकिस्तान की सक्सेस यूथ में है। वी हैव 65% यूथ इन पाकिस्तान, इन दिस कंट्री। हमको उसको सही यूटिलाइज़ करना है, चाहे वो आईटी हो, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे कोई भी सेगमेंट हो, हमें मिल के उस यूथ को इस्तेमाल करना है। और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है। जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने पेरेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो फेडरेशंस हैं, सबका काम है कि इस यूथ को आगे लेके जाएं। इस यूथ के सहारे पाकिस्तान आगे जाएगा। ये मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है पतराटा में, पसमानदा इलाका है, मरी से और कोटली सतिया से तलक रखते हैं। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसको हमने कोशिश की है कि वहाँ के गरीब आवाम के लिए कुछ सहूलतें दें उनको और जॉब दें। और ये 5 साल की मेरी मेहनत है, 5 साल से ज़्यादा अरसा लगा है ये मुकम्मल करने में। तो अभी इंशाल्लाह इसके लिए और भी काम कर रहे हैं। टूरिज्म इज़ द की फॉर पाकिस्तान, इस सेंटेंस को मद्देनज़र रखते हुए लेजेंड होटल की जानिब से और निज़ारा पटियाला की जानिब से एक मुआहदा तय पाया है जिसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जिसको टूरिस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन एक जो मसला आ जाता है कि वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। और ये बहुत अच्छा आगाज़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क के लिए जो टूरिज़्म है वो एक उनकी मैशियत पर बहुत असरअंदाज करता है और अहम किरदार अदा करता है। तो देखा जाए कि ये बहुत अच्छा आगाज़ है और हम सबको भी चाहिए कि ना सिर्फ इसको कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इसको सपोर्ट करें और इसको आगे प्रमोट करें। कैमरामैन फैजान के साथ सोनिया मलिक, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद में इंटरनेशनल व्हाइट कैन सेफ्टी डे के हवाले से रैली निकाली गई। रैली का आगाज इस्लामाबाद के चाइना चौक से हुआ और इख्तिताम डी चौक पर हुआ। इस रैली में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों के नाबीना बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से फरहान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में। यहाँ पर रैली का इनेकाद किया गया है इंटरनेशनल वर्ल्ड सेफ्टी कैन डे के हवाले से। इस रैली का इनेकाद या इसका जो आगाज़ किया गया है वो इस्लामाबाद के चाइना चौक से किया गया है और इसका इख्तिताम ये इस्लामाबाद की डी चौक में हुआ है। इस रैली में स्कूल के मासूम बच्चे जो कि बिनाई से महरूम हैं या जिनको बिनाई में या नज़र आने में मसाइल होते हैं, वो इस दिन में स्पेशली इस रैली में इन्होंने शिरकत की है। और इसमें इन्होंने ये जो वाइट स्टिक आप मेरे ऊपर में देख सकते हैं, बच्चों के हाथों में ये वाइट स्टिक पकड़ी हुई है। इस के दिन के हवाले से स्पेशली इस दिन का जो है मनाया जा रहा है। ये जो स्टिक्स होती हैं ये इन बच्चों की या फिर ये जो नाबीना लोग होते हैं, ये स्पेशली इस दिन के हवाले से, इस स्टिक के हवाले से दिन मनाया जाता है। आप ये बताइएगा कि ये किस तरह से आपको हेल्प करती है ये स्टिक? देखिए, ये इस तरह से हमें हेल्प करती है कि अब मिसाल के तौर पर किसी जगह पे हम जा रहे हैं तो हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ये एक हमारी पहचान है। एक तरह से मैं कहूँगा कि ये हमारी आंख की हैसियत ये वाइट कैन है। तो जहाँ पर हम जा रहे हैं ट्रैफिक हमारे लिए रुक जाती है, सामने कोई लड़का वगैरह हो या कोई पत्थर वगैरह खड्डा वगैरह हो, तो सब की पहचान हम इसी के थ्रू करते हैं। और पूरी दुनिया में अब इसको पहचाना जाता है और पूरी दुनिया में ब्लाइंड जितने भी लोग हैं वो इसी के ज़रिए जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में। यहाँ पर रैली का इनेकाद किया गया है
पाक पतन में मर्दो खवातीन हजारों मुलाजमीन लीव इनकैशमेंट में कटौती और दीगर मुतालबात के हक में चौथे रोज भी धरना दिए हुए हैं। दफातर और स्कूल की तालाबंदी करके हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी भी जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक भट्टी, क्या मुतालबात हैं एहतजाजी शुरका के, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह पाक पतन में भी लीव एनकैशमेंट के हवाले से जो मुलाजमीन हैं उनका आज चौथा रोज है एहतजाज का। चौथे रोज भी एहतजाज जारी है, उनका एहतजाज खत्म ना हो सका। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। मेरे साथ फीमेल खवातीन मौजूद हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। उनसे बात करते हैं कि हुकूमत से उनके क्या मुतालबात हैं। जी बताइए। मेरी जनाब चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो जालिमाना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है लीव इनकैशमेंट का और ग्रेजुएटी वगैरह को कट लगाया जा रहा है, मेहरबानी फरमाते हो इसको फिलफौर वापस लिया जाए। देखिए, हम 4 रोज से यहाँ सड़कों पर बैठे हैं और ये धरना हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात जो हैं उनको नहीं माना जाएगा। काइंडली इस चीज़ को फिलफौर जो है आप इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए इसको फिलफौर इस जालिमाना नोटिफिकेशन जो है इसको ख़त्म करें। इसको दोबारा से हमें जो हमारे साबका कवानीन चल रहे थे जिसकी बिना पर हम भर्ती किए गए थे, हम वही पॉलिसीज जो हैं वो दोबारा लागू की जाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खातून की बात सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत से उनके मुतालबात हैं कि जिस तरह हमने अपनी ज्वाइनिंग की थी वही कानून हम पर दोबारा लागू किया जाए। ये जो जालमाना बिल पास किया गया इसको फिल फौर वापस लिया जाए, अदरवाइज हम इस एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए पंजाब लेवल पर लेकर जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर मुल्क भर की तरह कोट अद्दू में भी जमात इस्लामी की जानिब से हफ्ता यकजहती फलस्तीन के हवाले से प्रोग्राम्स तश्कील दिए गए। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कोट अद्दू फुरकान आसिफ गुजदार के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हमजा, बताइएगा कौन कौन है प्रोग्राम तश्कील दिए गए हैं। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर मुल्क भर की तरह जमात इस्लामी कोट अद्दू की जानिब से भी जो है हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन के हवाले से जो है प्रोग्राम जो है वो तश्कील दे दिए गए हैं। इस हवाले से जो फ़लस्तीन के फ्लैग्स हैं वो भी जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो कोट अद्दू शहर में जो है वो लगाए जा रहे हैं। भरपूर जो है शहरियों का जो है वो जोश खरोज है वो भी देखा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी ज़िला कोट अद्दू फुरकान आसिफ गुजदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कॉल पे शहर में एहलियान शहर में एक जोश व खरोश पाया जाता है। इस हवाले से जहाँ से भी हमने रब्ता किया है, जहाँ भी रब्ता किया है, सब दोस्तों ने इस हवाले से जितने भी प्रोग्रामात हैं, सबसे पहले हमने परचम मुहिम का आगाज़ किया है और ये परचम मुहिम कल रात से जारी है और इसको अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पे जैन प्लाजा में मौजूद हैं और हमने ये परचम लगाया है। इस तरह दीगर दर्जनों कॉल्स आ रही हैं कि हमें परचम मुहैया किए जाएँ। हम गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे परचम लगा के फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं और इंशाल्लाह हमारा ये इरादा है कि पूरा हफ्ता हम इंशाल्लाह इस परचम मुहिम को जारी रखेंगे। घरों पे, दुकानों पे, गाड़ियों पे और अपनी अपनी जो दीगर जगह है वहाँ पे वो इंशाल्लाह परचम आवेज़ा करेंगे। और उसके बाद जो आज सबसे बड़ा प्रोग्राम है 3 बजे इंशाल्लाह प्रेस क्लब में हमारा सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस है फ़लस्तीन के हवाले से और उसके बाद इंसानी हाथों की जंजीर बना के यकजहती का इजहार किया जाएगा अहले फ़लस्तीन के साथ और ये हमारी ईमानी ज़रूरत है। हमें कश्मीर, अफ़गानिस्तान और अपने इर्द गिर्द के अलावा फ़लस्तीन के साथ हमारी मोहब्बत का जो एक सबसे ज़्यादा वालिहाना मोहब्बत की जो वजह है क्योंकि वो अर्ज़ मुक़द्दस है, बैतुल मक़दस है, क़िबला अव्वल है। हमारी ईमान की भी ज़रूरत है, हमारे जज्बात, हमारी मोहब्बत, हमारा इखलास उनके लिए है और हम जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं यहाँ ठहर के हम करेंगे इंशाल्लाह और इसकी तैयारी है। इसके बाद हम गज़ा के लिए इमदादी कैंप का भी आगाज़ कर रहे हैं जिसके हवाले से दोस्तों से मुलाकात और राब्ते जारी हैं। एक मेन सेंट्रल पॉइंट पर कोट अद्दू में इंशाल्लाह इमदादी कैंप का आगाज़ करेंगे चूँकि अल खिदमत फाउंडेशन ने 10 करोड़ की रकम से जो है ना इब्तदाई रिलीफ फंड का आगाज़ कर दिया है और उस हवाले से हम जगह जगह कैंप लगा के वो रिलीफ फंड इकट्ठा करेंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों की ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। जी बिल्कुल, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए जो है परचम मुहिम वेलकम बैक। आपको बताएं कि जिला खानेवाल में भी लीव इन कैशमेंट और पेंशन के खात्मे और निजकारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज के दौरान उसातिज़ा की गिरफ्तारियों के खिलाफ हड़ताल से तदरीसी अमल मुअत्तल होने पर उसातिज़ा और तलबा ने रोड ब्लॉक कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे खानेवाल से कैसर चौधरी।
ضلع خانیوال میں بھی ملازمین کی تنظیم ایبیکا اور اگیکا کے پلیٹ فارم سے سرکاری دفاتر اور اسکولوں میں ہڑتال کرتے ہوئے دفاتر کی تالہ بندی اور اسکولوں میں تدریسی نظام معطل کر دیا گیا ہے، جس کی بنا پر خانیوال، میاں چنو، کبیروالا، جہانیاں، پیروال اور مخدوم پور میں ملازمین اور طلبہ نے احتجاجاً روڈ بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی لمبی لمبی لائنیں لگنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا سے مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے قائدین کو فی الفور رہا کرے اور حکومت ملازمین کے جتنے مسائل ہیں جن کی وجہ سے احتجاج ہو رہا ہے، مثلا لیو انکیشمنٹ کا کالا قانون وہ فی الفور واپس لے، اور پینشن اصلاحات کے نام پہ جو حکومت اصلاحات کرنے جا رہی ہے اس کو بھی بالکل ختم کرے، اور باقی جتنے اساتذہ یونین کے لیڈران کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فی الفور رہا کرے۔ احتجاجی مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ حکومت سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ، پینشن کے خاتمے اور نجکاری کے عمل کو فوری طور پر بند کرے اور لاہور میں احتجاج کرنے والے گرفتار ملازمین کو فوری رہا کریں۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا، جبکہ ضلع خانیوال کے اسکولوں کے باہر تالے لگا کر بینرز بھی آویزاں کر دیے گئے ہیں اور تدریسی نظام کا سلسلہ بھی غیر معینہ مدت تک بند کر دیا گیا ہے، اور مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک ملازمین کا احتجاج اور ہڑتال جاری رہے گی۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ سابق تحصیل احمد پور لمبا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کی نیندیں حرام کر دی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہو کر انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے۔ مزید جانتے ہیں رضیہ سولنگی سے۔ جی رضیہ سولنگی، آگاہ کیجیے گا ہمیں اس حوالے سے۔ میں اس وقت مین مارکیٹ میں موجود ہوں۔ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں، تو یہاں پر میں ایک دکان میں موجود ہوں اور یہاں پر شہری بھی موجود ہے، تو چلیے آئیے شہری سے جانتے ہیں کہ ان کو کس قدر پریشانی ہے۔ مہنگائی مر گئے ہم، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانا سے اٹا ہے، نہ گال، صبح کر شام تک محنت مزدوری کر کے مار دوں، روزی نہیں پوری تھی پی، اتنی مہنگائی ہے۔ اگر اٹا گنتے دال گنتے سبزی کو نہیں، کوئی شے کو نہیں، بڑا پاکستان کیا کرے؟ بچے تنگ ہیں، اصا آپ تنگ ہوں، صبح نماز پڑھتے کام نکتوں تو شام تک روزی کروں، شام تک بچے کا پیٹ نہیں پلتا۔ یہ حالات تھے پاکستان دے، یہ صادق آباد کے حالات، اگے کیا حالات ہے پاکستان دے؟ سویر فجر ٹائم نماز پڑھتا، اللہ دعا منگتوں، روز نکلتوں، حالات یہ شام تک کر کے بچے روزی نہیں پڑتی۔ خدا را کوئی ملک کوئی انسان ہے جو بڑا میں حالات سارے پورے بس ہی رونا اسے بیا کوئی نہ سکے بس باجی۔ جی، تو جس طرح سے آپ نے شہری کی بات سنی، یہ بوریاں اٹھانے والا ایک عام شہری ہے جس کا کہنا ہے کہ ہم آٹا پورا کرتے ہیں تو سبزی پوری نہیں ہوتی، سبزی پوری کرتے ہیں تو آٹا پورا نہیں ہوتا۔ اب ان کی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اب ہمیں بتائیے کہ ہم کیا۔ پتو کی ننکانہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، کھاریاں، شکرگڑھ سمیت پنجاب بھر میں سرکاری سکولز کے اساتذہ سڑکوں پر سکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف مطالبات کے حق میں احتجاج جاری۔ سکولوں کی نجکاری کے خلاف پتوکی میں مختلف سرکاری سکولز میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ گورنمنٹ گرلز اور بوائز سکولز کی تالہ بندی کر کے ٹیچرز اور طلبہ و طالبات کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ منڈیاں والا چک نمبر 19 گرلز پرائمری سکول میں فیمیل ٹیچرز کے ساتھ ننھی طالبات نے بھی پلے کارڈز اٹھا کر پنجاب حکومت کے اس اقدام کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ خواتین ٹیچرز کا کہنا تھا کہ مقدس پیشے سے منسلک اساتذہ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک امر ہے۔ جب تک حکومت فیصلہ واپس نہیں لے گی، تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی، احتجاج جاری رہے گا۔ لاہور دھرنے میں اگیگا قائدین کی گرفتاری پر ننکانہ صاحب کے سرکاری دفاتر اور سرکاری سکولوں کی تالہ بندی کی گئی۔ سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل بھی رہی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اگیگا قائدین کو فی الفور رہا کیا جائے اور ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال پر رہنما استحکام پاکستان پارٹی ہاشم ڈوگر کا ویڈیو پیغام دیتے ہوئے کہنا ہے کہ ہم سب کو غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے غزہ کی انتہائی خوفناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ ہاشم ڈوگر کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ جناب جہانگیر ترین صاحب، سرپرست استحکام پاکستان پارٹی، اور صدر استحکام پاکستان جناب علیم خان صاحب، مزید تمام ہماری جماعت کے جتنے بھی اس وقت لیڈرز ہیں، کارکنان ہیں، اس کے علاوہ پورے پاکستان کی جانب سے یہ جو غزہ میں جو صورتحال ہے،
हमें शदीद तशवीश है और सब एक सदमे के अंदर से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ऐसी खौफनाक तस्वीर आ रही हैं कि जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई संगदिल लोग भी शायद उनको देख के हजम नहीं कर सकते। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के भी बहुत सारे ममालिक जो कि इसराइल को शय दे रहे हैं, इंतहाई अफसोस का मकाम है। और ये निहत्ते मुसलमान जो उनके साथ इस वक्त वहाँ पे बीत रही है, ये तो तारीख़ बताएगी कि इस जुल्म में कौन कौन शरीक थे, मगर जो मासूम बच्चे और जो ख़वातीन बूढ़े, उनकी जो इवन अब मेरे ख्याल है हस्पतालों में जगह नहीं रहेगी। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे उन्होंने सप्लाई लाइन हर किस्म की बिजली की और खुराक की और ईंधन की वो सब बंद कर दी हैं। तो इसके नतीजे में तो ये पूरा खुदा न खास्ता कब्रिस्तान बन जाएगा। तो हम अपील करते हैं दुनिया की तमाम बड़ी क़ुव्वतों से, OIC से, कि वो अपना रोल अदा करें, मगर मैं समझता हूँ कि फौरी जंग बंदी होनी चाहिए ताकि और मज़ीद कोई मासूम जाने इसमें ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर तरीन साहब। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का धरना जारी है। अदालत ने गिरफ्तार धरना मुजाहिरीन को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिससे अदालत ने मुस्तरद करते हुए गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, बताइएगा। जी अलीना, पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की जानिब से सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने दिए गए धरने पर 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब पंजाब पुलिस ने निगरान हुकूमत की हिदायत पर पुरअमन धरना मुजाहिरीन के खिलाफ रोड बंद होने के बाद शहरियों को दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए ऑपरेशन किया और धरना मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के साथ सड़क खाली करवाने में कामयाब हुई। ऑपरेशन के दौरान 102 के करीब सरकारी मुलाजमिन को सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने से गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया, जिनके खिलाफ 2 मुकदमात थाना इस्लामपुरा में दर्ज किए गए, जिन्हें आज सुबह जिला कचहरी लाहौर जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद की अदालत में पेश करते हुए पुलिस ने अदालत से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की, जिस पर FIR के मतन और लगाई गई दफात के मुताबिक गिरफ्तार मुलाजमिन पर लगाए गए इल्जामात के शवाहिद न होने की बिना पर अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए गिरफ्तार सरकारी मुलाजमिन को रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए है। और अगर इसके क्रेडिट की बात करें तो ये क्रेडिट उन धरना देने वाले सरकारी मुलाजमिन और उनकी क़यादत को जाता है जो ऑपरेशन और गिरफ्तारियों के बावजूद पुरअमन रहे। दूसरी तरफ अगर धरने और पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल धरने से भी ज्यादा खराब नजर आ रही है। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने पंजाब भर से आए सरकारी मुलाजमिन की तंजीमों के कायदीन के अहकामात पर अपने अपने शहरों को वापस लौट चुके हैं और दफातर की तालाबंदी करके हर शहर में एहतजाज कर रहे हैं, जिससे पंजाब के हर शहर में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 माह में वक्फे से ये सिलसिला जारी था और अब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने मुलाजमिन और सरकारी मुलाजमिन की तंजीमों के कायदीन की गिरफ्तारी के बाद सरकारी मुलाजमीन जो लाहे अमल अपनाते नजर आ रहे हैं वो पंजाब के सरकारी दफातर की मुस्तकिल तालाबंदी है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा होगा। निगरान पंजाब हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन से निपटने के लिए गिरफ्तारियों और ऑपरेशन की बजाय हिकमत अमली बेहतर बनाते हुए मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया राना इरफान हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच में शहरियों को अपनी गाड़ियां रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, टोकन टैक्स देने में मुश्किलात से दोचार होना पड़ता है। DG एक्साइज और सेक्रेटरी एक्साइज की नाकिस पॉलिसियों के बायस मोटर मालिकान सरकार को अरबों का रेवेन्यू देने वाले बार बार चक्कर लगाकर ख्वार होते नजर आते हैं। मजीद जानते हैं मुश्ताक चौधरी की इस रिपोर्ट में। तबाही दौरान हुकूमत पंजाब के महकमा एक्साइज में DG सेक्रेटरी का शाही दौर 2 माह गुजर गया, लेकिन टेक्नोलॉजी सिस्टम मोटर ब्रांच में फाल ना हो सका, जिसके बयास मोटर मालिकान शहरियों को मुश्किलात का सामना। शोरूम मालिकान गाड़ियां खरीदो फरोख्त करने में नाकाम हो गए, बार बार दफातर के चक्कर लगाकर मायूसी का सामना करना पड़ता है। मोटर ब्रांच डाटा ऑपरेटर बेबस हो गए। सरकार के रेवेन्यू में अरबों नुकसान होने के बायस DG सेक्रेटरी सीटों पर दर्जमान मोटर ब्रांच में आए मोटर मालिकान ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, बार बार दफ्तर के चक्कर और सिस्टम में आने वाली खराबियों ने गाड़ी खरीदो फरोख्त करने वाले कारोबार ठप कर दिए, जिंदगी गुजारना मुहाल हो गया। लेकिन DG सेक्रेटरी एक्साइज की नाकिस पॉलिसियों के बहस आज भी अपनी सीटों पर दर्जमान नजर आ रहे हैं।
میں نے AQD نمبر 122 میں نے ڈالا تھا, 2000 روپے جمع کرایا تھا, وہ میرا نمبر نہیں نکلا لیکن مجھے پیسے واپس نہیں ہوئے. میں نے دوبارہ نمبر لیا, اس میں سے ڈیڈکشن نہیں ہوئی میرے نمبر سے. یہ سسٹم نیا آیا ہے نا 6 تاریخ پچھلے مہینے کی, تو آج تک کام نہیں ہو سکا. کوئی بھی ٹرانسفر کیس ڈالتے ہیں تو لکھا آتا ہے جی ایکسائز ریویو کریں, ایکسائز جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں سے ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں, 6 دن کا ویٹ, پھر 6 دن کا ویٹ کرتے کرتے آج کم از کم کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. نہ کوئی فیس جمع ہو رہی ہے, نہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. بینک کا کام تو بالکل نہیں ہو رہا, بہت نقصان ہو رہا ہے, گورنمنٹ کو بھی ہو رہا ہے نقصان اور ہم لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. یہ ان کا سسٹم کی پرابلم ہے, اگر یہ سسٹم کو درست کر لیں ذرا جلدی تو پبلک تو بڑی خراب ہو رہی ہے. اس سے مطلب کہ ان کا ریونیو بھی ریکور نہیں ہو رہا اور سب لوگوں کے لیے ٹینشن بڑھ رہی ہے. جتنی جلدی ایڈیشنل IG ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کا خواجہ سراؤں کے باعزت روزگار کے لیے احسن اقدام. پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں ٹرانسجینڈرز کے لیے ڈرائیونگ لائسنسز و ڈرائیونگ سکول سروسز کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا. ایڈیشنل IG مرزا فرحان بیگ نے ٹریفک ہیڈ کوارٹر لاہور میں پنجاب بھر سے آنے والے ٹرانسجینڈرز کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے. ڈرائیونگ لائسنسز کے اجراء پر ٹرانسجینڈرز نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایڈیشنل IG سمیت تمام افسران کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ایڈیشنل IG پنجاب مرزا فرحان بیگ کا کہنا تھا کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن کو حقیقی معنوں میں یقینی بنایا جا رہا ہے. خواجہ سراؤں کو لائسنسنگ سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام اضلاع میں ایک علیحدہ کاؤنٹر بھی مختص کیا گیا ہے. ایڈیشنل IG مرزا فرحان بیگ کا کہنا تھا کہ اب تک 200 سے زائد خواجہ سراؤں کو لرنر پرمٹ جبکہ 20 کو باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جا چکے ہیں. مرزا فرحان بیگ کا کہنا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول سے خواجہ سراؤں معاشرے میں ایک باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے. خواجہ سراؤں کو ٹریفک پولیس کے ڈرائیونگ سکول میں مفت داخلے دیے جا رہے ہیں. مرزا فرحان بیگ نے کہا کہ صاف ستھرے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ برصغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کے 1015ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات آستانہ پر شروع ہو گئی ہیں. سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری نے میدان پر انوار پر رسمی چادر پوشی اور تقریبات کا افتتاح کیا. ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد و ترجمان اوقاف محمد علی خان, ایڈمنسٹریٹر ایسٹ لاہور زون محمد اشفاق ڈیال, مینیجر داتا دربار و سرکل لاہور شیخ محمد جمیل بھی موقع پر موجود تھے. رسمی چادر پوشی کی تقریب میں امور مذہبی کمیٹی کے چیئرمین ممبران کے ساتھ ساتھ معززین علاقہ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی شریک ہوئی. زیر تعمیر عمارتوں پر کام سست روی کا شکار, سیمنٹ مہنگا اور گھر بنانے کا خواب پورا نہ ہو سکا. گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان کے اندر مہنگائی نے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. خاص طور پر تعمیرات کے مٹیریل اور سیمنٹ کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا. مزید بلڈنگ مٹیریل سمیت کن کن چیزوں میں اضافہ ہوا ہے, جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں. زیر تعمیر عمارتوں پر کام سست روی کا شکار, سیمنٹ مہنگا اور گھر بنانے کا خواب پورا نہ ہو سکا. گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان کے اندر مہنگائی نے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. خاص طور پر تعمیرات کے مٹیریل اور سیمنٹ کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا. سیمنٹ کے فیکٹری مالکان بڑھتی ہوئی قیمت کا الزام عالمی سطح پر خام مال کی قیمت اور ایندھن کی قیمت میں اضافے سے جوڑتے ہیں. پاکستان میں سیمنٹ تیار کرنے والے بڑے بڑے کارخانے موجود ہیں جن کی باقاعدہ طور پر اجاداری قائم ہے. عالمی طور پر تیل اور کوئلے میں اضافے کے بعد سیمنٹ کی پیداواری لاگت اور خام مال کی قیمت اضافے کے بعد سیمنٹ کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. مگر جب عالمی منڈیوں میں ان کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو یہ فیکٹریاں قیمتیں کم نہیں کرتی. اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کی نسبت سیمنٹ کی مجموعی فروخت کا حجم پچھلے سال کی نسبت 20 سے 40% کم رہا, جس سے واضح طور پر سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اس کی فروخت میں کمی دیکھی جا سکتی ہے. ماہرین کے مطابق عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمت میں کچھ عرصے کے دوران 3 گنا اضافہ ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان میں سیمنٹ کی قیمت میں بھی اضافہ ناگزیر تھا. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت سیمنٹ کی قیمت میں 40% اضافہ ہو چکا ہے. اس شعبہ سے منسلک افراد کے سیمنٹ اور سریے کی قیمت میں بے پناہ اضافے کے ساتھ ساتھ تعمیرات کی دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا. ان میں ایلومینیم کھڑکیوں اور دروازوں کے استعمال ہونے والی لکڑی کا سامان, سینٹری کے سامان اور ٹائل ماربل کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا. بے تحاشا اور منمانے اضافے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام. کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن, اشتہاری ملزمہ کو بچی سمیت وومن پولیس اسٹیشن میں
रखने की वीडियो वायरल होने के बाद डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का थाना का हंगामी दौरा। मुकदमे में मतलूब मुलजमा की बच्ची हुरैन से मुलाकात। एएसआई अफीफा अनवर, मुहर्रर थाना वुमेन रेस कोर्स फरजाना रशीद को मुअत्तल कर दिया गया। एसएचओ वुमेन रेस कोर्स सब इंस्पेक्टर निदा इशफाक को शो कॉज नोटिस जारी हो गए। डीआईजी ऑपरेशंस का एसपी सिविल लाइन को इंक्वायरी का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने बच्ची को तहाइफ भी पेश किए। मजीद डीआईजी ऑपरेशन ने क्या कहा, आइए उनकी जुबानी जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली नासिर रिजवी है और मैं वुमेन पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर। जो हुरैन फातिमा है, हमारी 7 साल की नन्ही बच्ची, उनके साथ उनकी वालदा जो कि जिन पर एक एफआईआर हुई है 2021 में, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी तो मैं खुद यहाँ पर आया इसलिए ताकि मैं एक एक चीज़ की खुद तहकीक भी करूँ और साथ ही जो एक हुरैन फातिमा है, हमारी छोटी बच्ची, उनको मैं मिल के भी मैं ये चीज़ बताता चलूँ, आपको क्लियर करता चलूँ कि बेसिकली जिस वक्त यहाँ पर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, जिस वक्त आरिफा जो हैं, इनको जिस वक्त घर से लाया गया तो क्योंकि घर में कोई ऐसा नहीं था जो कि इनकी कस्टडी ले सकता, तो फॉर दैट रीज़न वो जो हैं ये अपनी मदर के साथ हैं। जहाँ तक इनकी मदर को जिस वक्त लॉकअप में बंद किया गया तो छोटी बच्ची ने जिद की कि मुझे अपनी माँ के साथ वक्त गुजारने दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो इंचार्ज यहाँ पर पुलिस स्टेशन में उस वक्त थी, जो आईओ थी जिन्होंने उनको लेके आई और जो जिम्मेदार थी, ये उनकी गलती। उनको बिल्कुल किसी सूरत अगर वो बच्ची जिद भी कर रही है और अगर माँ अम्मी रिक्वेस्ट भी कर रही है इस वजह से कि वो बहुत ज्यादा चाह रही थी कि अपनी वालदा के पास जाएं और उन्होंने वालदा के पास उनको कुछ देर के लिए बिठा दिया, बट ये वाली चीज किसी रूम में बैठ के भी की जा सकती थी। That was totally not acceptable. I am telling everyone, जो वो एएसआई हैं जिन्होंने पकड़ के लाई और जो जिम्मेदार थे, जो जिम्मेदार इसमें हैं, उन सब जिम्मेदारों के खिलाफ I am going to take stern action. I am going to place them under suspension and going to take stern action. आज यहाँ पर आने का इस हमारी नन्ही बच्ची के लिए मैं चॉकलेट लाया हूँ, उसके साथ टाइम गुजारा है। मैं हुरैन फातिमा का एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया हूँ। ऐसे ही है। So now we are friends, good friends. फूल जैसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे पेश आना है, अगर ये चीज भी नहीं किसी को पता। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम अहमद खान और डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल भी मौजूद थे। आईजी पंजाब ने सियालकोट की मस्जिद में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े के बारे में हकायक बयान किए। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर आईजी पंजाब के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त आईजी पंजाब मौजूद हैं। जिस तरह से मुल्क में दहशतगर्दी का एक आलम था और सियालकोट पुलिस के साथ जो है वो सीटीडी ने कार्रवाइयां करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से अगर देखा जाए तो मेरे साथ यहाँ पर आईजी पंजाब मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान अनवर। सर, बड़ा नेटवर्क तोड़ दिया गया है, सीटीडी ने जो है वो बड़ा काम किया है, पंजाब पुलिस ने तमाम इंटेलिजेंस ने काम किया है। क्या कहेंगे, कितने लोग गिरफ्तार हैं, उनका मंसूबा क्या था? पहले उनका मंसूबा ये था कि यहाँ पे हमारे उलमा को, हमारे बंदों को शहीद करते रहे और दुनिया में कहते रहे कि हमने दहशतगर्द मार दिए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पीस लविंग हम लोग हैं, हमने इनको पकड़ा है, 7 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, बाकी को इंशाल्लाह हम गिरफ्तार करते जा रहे हैं। इस पर भी हमारी रेड हो रही है, डीपीओ कसूर अभी भी रेड कर रहे हैं। हमने अभी आपको एक्सपोज करके रख देना है एक एक नाम के साथ, फंडिंग वालों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक। कितने लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं? 7 गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला 14-15 का गैंग हम इंशाल्लाह आपको करके भी चंद दिनों में दे देंगे। मेरे साथ आईजी पंजाब यहाँ पर मौजूद थे जिनका कहना था कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर जो है वो सियालकोट पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसीज ने जो है वो बड़ी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद जो है वो बहुत सारे ऐसे मुलजमान को बेनकाब करना बाकी है जिनके नाम भी जो है वो तस्वीरों के साथ सामने लाए जाएंगे। जी, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने सकाफती वर्से को महफूज बनाने के लिए आपस में मुआहदे करते हुए एमओयू पर दस्तखत कर दिए हैं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में।
वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने तारीखी मकामात की तहकीकी इकदामात को आगे बढ़ाने, किला लाहौर की लाइब्रेरी के इंतजाम और सकाफती विरसे के मकामात को फरोग देने के लिए शराकत दारी कायम करते हुए मुफाहमत की याददाश्त MOU पर दस्तखत किए हैं। MOU की शराइत के तहत दोनों अदारे तुलबा, मुहक्किकीन और पेशावर अफराद की इज्तिमाई महारत को बुरुए कार लाते हुए जदीद तहकीकी मंसूबों पर तावन करेंगे। ये शराकत दारी लाहौर शाही किले में लाइब्रेरी के तहफ़्फ़ुज़ और इंतजाम पर भी तवज्जो मरकूज करेगी। इस बात को यकीनी बनाएगी कि इसके तारीखी मखतूतात और नमूने आइंदा नस्लों के लिए महफूज रहें। ये बात काबिल जिक्र है कि इस शराकत दारी के तहत 1800 से लेकर 1947 तक का डेटा महफूज किया गया था। हवेली खड़क सिंह में खतूत को मट्टी से महफूज दर्जा बंदी और महफूज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में पहली बार नवादरात को महफूज किए जाने वाले कलीदी कामों में से एक है। डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी कामरान लाशारी और वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी ने मज़कूरा कामों को मकबूल बनाने के लिए मुफाहमत नामे पर दस्तखत। तर्जुमान लेस्को राय मसूद खैल का कहना है कि CEO लेस्को शाहिद हैदर का हुक्म है कि तमाम फील्ड ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स बगैर किसी किस्म के प्रेशर के किसी ब्लैकमेलर या डाउट माफिया का रूल से हटकर काम हरगिज न करें, सिर्फ मेरिट पर काम करें। तफसील जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी कोहिनूर CEO लेस्को शाहिद हैदर ने लेस्को में इस्लाहात मुतारफ कराने के सिलसिले में एक कदम और आगे बढ़ाया है। तर्जुमान लेस्को राय मसूद खल का कहना है कि CEO लेस्को शाहिद हैदर के नोटिस में ये बात आई है कि कुछ काली भेड़ें, ब्लैकमेलर, टाउट माफिया लेस्को हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स का नाम लेकर ऑपरेशन ऑफिसर्स और ऑफिशियल से प्रेशर डालकर नाजायज तरीके से गलत काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो न सिर्फ काबिल मजम्मत बल्कि काबिल गिरफ्त जुर्म भी है। लिहाजा कोई ऑफिसर या ऑफिशियल किसी किस्म का दबाव लिए बगैर पहले इस बात की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लेस्को राय मसूद खर से तस्दीक करवा ले कि क्या वाकई लेस्को हेडक्वार्टर से ये मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं। बगैर तस्दीक के किसी टाउट या ब्लैकमेलर का कोई काम ना करें और किसी के असर में ना आए। ये अहकामात इसलिए जारी किए हैं कि ब्लैकमेलर, टाउट माफिया के कल्चर का कला कमा किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया साजिद काज़मी तफसीलात से आगाह करने के लिए। ICC वर्ल्ड कप 2023 के सनसनीखेज मैचेस भारत में जारी हैं। आलमी कप का सबसे बड़ा टाकरा कल पाक भारत मैच भारत के शहर अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा अब्बासी से, जो इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ICC वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मैच जो है वो कल दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि भारत के शहर अहमदाबाद में वाक़ है वहाँ पर खेला जाएगा। पाकिस्तान इससे पहले भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन शायकीन जो हैं वो इस मरतबा पुरजोश हैं कि कल पाकिस्तान जो है वो भारतीय सुरमाओं को शाहीन शिकस्त देकर नई तारीख रकम करेंगे। मेरे साथ एक क्रिकेट फैन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कल पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का, क्या समझते हैं कल पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर नई तारीख रकम करेगा और किससे आपको उम्मीदें हैं, किन पाकिस्तानी प्लेयर से आपको उम्मीद है कि वो परफॉर्म करेंगे? जी बिल्कुल, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है और पाकिस्तान कल जीतेगा, तारीख रकम करेगा। कल हमारे सब खिलाड़ी बाबर, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, इमामुल हक सब अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और मैच जितवाएंगे। जी बिल्कुल, फैंस की गुफ्तगू आपने सुनी, वो पुरजोश है कि बाबर, फ़खर और शादाब, शाहीन जो हैं वो कल परफॉर्मेंस देंगे और शाहीनों को अपनी टीम को फतह दिलवाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है कल वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा और हम भी ये दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि कल शाहीन जो हैं वो भारतीय सुरमाओं को शिकस्त देकर एक नई तारीख रकम करेंगे। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर।